శ్రీవారి కళ్యాణ ఉత్సవం.
కళ్యాణ నిధయే నిధయేర్థినాం శ్రీ వెంకట నివాసాయ శ్రీనివాసాయ తే నమః. శ్రౌత స్మార్త ఆదికం కర్మ నిఖిలం ఏన సూత్రితం తస్మై సమస్త వేదార్థ విదే విఖనసే నమః. శుక్లాంబరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్నవదనం ధ్యాయేత్ సర్వ విఘ్నోపశాంతయే. శ్రీ గోవింద గోవింద గోవింద. అథ భగవతో మహాపురుషస్య మహావిష్ణోః ఆజ్ఞయా ప్రవర్తమానస్య అద్య బ్రహ్మణః ద్వితీయపరార్థే శ్రీ శ్వేతవరాహకల్పే వైవస్వత మన్వంతరే కలియుగే ప్రథమపాదే జంబూద్వీపే భారతవర్షే భరతఖండే శకాబ్దే మేరోః దక్షిణే పార్శ్వే ఆదివరాహక్షేత్రే వెంకటాచలే కళ్యాణమండపే భగవత్ భాగవత ఆచార్యాణం సన్నిధౌ ఏవం గుణ విశేషణ విశిష్టాయాం అస్యాం శుభతిథౌ అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రియఃపతేః పురుషోత్తమస్య శ్రీమత్ అఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండ నాయకస్య శ్రీభూ నీలా సమేత శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః వైవాహిక కళ్యాణ మహోత్సవ కర్మాంగం అస్య యజమానస్య. అందరూ మీ గోత్రాన్ని మనసులో స్మరించండి. మీ పేరుని, మీ ధర్మపత్ని పేరుని, మీ పిల్లల పేర్లని, మీ కుటుంబ సభ్యుల పేర్లని అందరూ మనసులో స్మరించి స్వామివారిని మనసారా ప్రార్థించండి. అందరూ చెప్పండి. మమ సహ కుటుంబస్య సబాంధవస్య సపరివారస్య క్షేమ స్థైర్య ధైర్య విజయ అభయ ఆయుః ఆరోగ్య ఐశ్వర్య అభివృద్ధ్యర్థం సత్సంతాన సౌభాగ్య
सिद्ध्यर्थम राजद्वारे राजमुखे सर्व अनुकूल सिद्ध्यर्थम श्री श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक कल्याण महोत्सवं श्री वैखानस भगवच्छास्त्र मार्गेण आचार्य मुखेन अहं कारयिष्ये सर्वं श्री श्रीनिवास अर्पणमस्तु। गोविंद गोविंद श्री वेंकटाचल। श्री वेंकटाचलाधीशं श्रीयात्यासित वक्षसं श्रितचेतन மந்தாரம் ஸ்ரீனிவாசம் மகம்பஜே என்று அந்த திருமலை அப்பனுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே சங்கல்ப மந்திரங்களை தொடர்ந்து விஸ்வக்சேன் ஆராதனை சுத்தி புண்ணிய வாஜனத்தை சேவிப்பதற்கு முன் எம்பெருமானையும் நாச்சிமார்களையும் சேவித்துக்கொண்டு அவர்களுடைய அனுகிரகத்தை பெறலாம். கல்யாண உற்சவத்தின் நேரடி ஒளிபரப்பின் வர்ணனையாளர் திருமதி ஏ. அருணா. இதோ இன்று கார்த்திகை மாதம் 4வது நாள் மற்றும் செவ்வாய்க்கிழமை சதுர்த்தியுடன் கூடிய இந்த திருக்கல்யாண மகோத்சவத்தில், அதாவது திருவாதிரை நட்சத்திரம், இந்த திருக்கல்யாண மகோத்சவத்தை நேரடி ஒளிபரப்பில் சேவிக்கலாம். விஸ்வக்சேன ஆராதனை சுத்தி புண்ணிய வாஜனத்துடன் ஆரம்பமாகிறது திருக்கல்யாண மகோத்சவம். பகவானே வேங்கடவனே கோவிந்தா 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 என்று செவிக்கலாம் அந்த திருமலை அப்பனுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்தை. திருமலையிலிருந்து நேரடி ஒளிபரப்பில் கோவில் உள்ளே இருக்கும் ஷண்முக பிராகாரத்தில் உள்ள கல்யாண மண்டபத்திலிருந்து நேரடி ஒளிபரப்பினை சேவித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். ஓம் பகவதோ பலேன பகவதோ வீர்யேன பகவதஸ்தேஜசா பகவதகர்மணா பகவதானுகೃಹீதோ தனுத்யாதோ பகவன் த்யாத்வா பகவத்கர்ம கரிஷ்யாமி தத் பகவான் நமன்யதாம் பிராணாநாயம்யா. अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्डनायकस्य परव्यूह विभव अन्तर्यामि अत्यावतार स्वरूपस्य श्री भूनीला समेत श्री श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक महोत्सवाकिञ्चकर्मणि स्तण्डिलपरिदिपरिस्तरण सर्वोपकरण सुत्यर्थं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं शुद्धि पुण्याहवाचनाख्यङ्क्रमकरिचन्नादो निर्विघ्नेन परिसमावाप्यर्थं विश्वक्सेन आराधनाख्यञ्चकर्मणि तरङ्गकरकाराधनं करिष्ये. ओम धारासुरप्तशुनमानशेषु सुरत्सरुच्च परिपूरितेषु नपोभिगृह्णन् प्रतिमातकिष्ये गृणोमि हत्ताकं चित्रकं सुधर्मा निनमापश्यमा शिवतमा श्यामता शान्ततमा शुभा शुभतमा पूता पुतरमा पुण्या पुण्यतमा मेध्या मेध्यतमा अमृता अमृतरसाः पूता ब्रह्म पवित्रेण पूता सूर्यस्य रश्मिभिः एते शतं वर्णये सहस्रं यज्ञया पाशापितरा पुत्रा तेभ्यो न इन्द्रस्य विदोतवित्तर विश्वे देवा मञ्जन्तमरुतस्वस्य अस्मिन् कुम्भे बुं वर्णमावाहयामि प्रचेतसमावाहयामि रक्ताम्बरधरमावाहयामि यातस्पतिमावाहयामि वरुणाय नमः आसनं समर्पयामि. वरुणाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि. वरुणाय नमः प्रचेतसे नमः रक्ताम्बरधराय नमः यातस्पतये नमः पुष्पाणि समर्पयामि. वरुणाय नमः कुडूपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि. सर्वोपचारान् समर्पयामि. सुधीश्वराय विद्महे पाशहस्ताय धीमहि तन्नो वरुणः प्रचोदयात्. वरुणाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि. आदौ निर्विघ्नेन परिसमा आवाप्यर्थं विश्वक्सेनाराधनं करिष्ये. विश्वक्सेनं चतुर्बाहुं सिंहचक्रसमन्वितं जयापतिं सृङ्गयेदं सपुष्पर्धवाहनं पूर्वाषाढोद्भवं देवं दक्षिणामुखमर्चयेत्. आग्नेयस्मात् जामहे त्वा विश्वे सदात्मं हितो न शम्भो मयिराजन्ते सुहदनिधत्तां प्रेष्यामदेशो विपथा नामनादर्यामे सस्तान्दरितान् दधात्. पद्माकारमण्डले वोम्बोः विश्वक्सेनमावाहयामि शान्तमावाहयामि हरमावाहयामि अमितमावाहयामि नित्यानुभाजनमावाहयामि. तद्दक्षिणे सूत्रपतिमावाहयामि वामेतिकामावाहयामि. सूत्रपतिका समेत श्री विश्वक्सेनाय नमः आसनं समर्पयामि. विश्वक्सेनाय नमः पाद्यं समर्पयामि
సమర్పయామి ఆచమనీయం సమర్పయామి విశ్వక్సేనాయ నమః పుష్పాణి సమర్పయామి విశ్వక్సేనాయ నమః గుడోపహారం నివేదయామి తాంబూలం సమర్పయామి సర్వోపచారాన్ సమర్పయామి విశ్వక్సేన స్మృతో రాజా భగవాన్ సర్వకర్మణః తస్మాద్ రాజ్యమపాసీత కర్మణాం విఘ్నశాంతయే ఆరంభే కర్మణాం పుష్టిం విజ్ఞానాం ప్రశమాత్యత కుర్యాత్ సపరివారస్య విశ్వక్సేనస్య పూజనం భవద్భిః అనుజ్ఞాతః సుపుణ్యం పుణ్యాహం వాచయిష్యే వాత్స్యతాం సుపుణ్యాహం కరోమి కురుష్వ స్వస్తి సుప్రోక్షితం అస్తు ప్రజాపతి ప్రియతాం ప్రజాపతిః శాం యంతు ఘోరాని శాం యంతు పాపాని శాం యంతు గీతయః శుభాని వర్ధంతాం శుభాని శాం యంతు ఘోరాని శాం యంతు పాపాని శాం యంతు గీతయః శుభాని వర్ధంతాం శుభాని శాం యంతు ఘోరాని శాం యంతు పాపాని శాం యంతు గీతయః శుభాని వర్ధంతాం శుభాని అతో దేవా అవంతనో యతో విష్ణుర్విచక్రమే పృథివ్యా సప్తధామభిః ఇదం విష్ణుర్విచక్రమే త్రేధా నదధే పదం సమూఢమస్య భాగం సురే త్రీణి పదా విచక్రమే విష్ణుర్గోపా అదాభ్యః తతో ధర్మాణి ధారయన్నే విష్ణోః కర్మాణి పశ్యతితో వృతాని పుష్పశే ఇంద్రస్య యుత్యస్సఖా తద్విష్ణోః పరమం పదకం సదా పశ్యంతి సూరయః దివే వచక్షురాతరం తద్విప్రాసో విపన్యమోజాగ్రవాగం సస్సమింధరే విష్ణోర్యత్పరమం పదం ద్రవిణోదాద్రవిణసస్తురస్య ద్రవిణోదాసనరస్య ప్రియం సతే ద్రవిణోదా వీరపదే మిషన్నో ద్రవిణోధారా సతే దీర్ఘమాయుః భద్రం కర్ణే విశృణుయామదేవా భద్రం వస్యేమాక్షభిర్యత్రాః స్త్రీరంగైస్తుష్టవాగంసస్తనోభిర్విషేమ దేవహితం యదాయుః శతమిన్న శరదో అంత్యదేవాయత్రానశ్చక్రాచరసం తనూనాం పుత్రాసో యత్ర పితరో భవంతి మానో మధ్యారీరశతాయక్కంతోః అతిదర్త్యోరతిరन्तరిక్షమతిర్మాతా సపితా సపుత్రః విశ్వే దేవా అతిథిః పంచజరా అతిదర్జాతమతిదర్జనిత్వం యత్పుణ్యం నక్షత్రం తద్భట్కుర్వేదోపవ్యశం యదా వై సూర్యముదేతి అథ నక్షత్రం నయతి యావద్ తత్ర సూర్యో గచ్ఛేత్ यत्र जघन्यं पश्येत् तावत् गर्वेत यत्कारी स्यात् पुण्याः एव कृते ओं भूः भूर्भुवस्वरं श्रीभगवदाग्नया भगवत्यङ्गिरूपं श्रीमन्नारायणप्रीत्यर्थं श्रीभूनिलासमेत श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकमहोत्सवाख्यञ्जकर्मणि सर्वत्र प्रोक्षणार्थं पुण्याहं भवन्तो भ्रमन्त पुण्याहं कर्मणोऽस्तु पुण्याहं कर्मणोऽस्तु पुण्याहं कर्मणोऽस्तु स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधात् ओं भूः पूर्वोक्तकर्मणि पूर्वोक्तनिर्माणाय पुण्याहं स्वस्ति भवन्तो भ्रमन्त कर्मणि स्वस्ति कर्मणि स्वस्ति कर्मणि स्वस्ति ऋद्ध्या स्वहव्यैर्नमसोपसत्या मित्रं देवं मित्रधेयन्नो अस्तु अनुराधान् हविषा वर्धयन्तः चिरञ्जीवेम शरदस्समीराः पूर्वोक्तकर्मणि पूर्वोक्तनिर्माणाय पुण्याहं वृद्धिं भवन्तो भ्रमन्तो कर्मऋध्यतां वृद्धिः समृद्धिः पुण्याहं समृद्धिः आपोहिष्टामयो भवस्तानपूर्जे तथादन महेरनाय चक्षसे यो वशिवतमोरसस्तुस्य भार्यदेहनः उचतीरवमादरः तस्मा अरङ्गमावमो यस्य क्षयाय जन्मथ आपोचन यथाचनः ओं पवमानस्वर्जनः पवित्रेण विदर्शनिः यः पोदास पुनातुमा पुनन्तमा देवजनाः पुनन्तमनबोधिय पुनन्त विश्व आजमः जातवेदः पवित्रवत् पवित्रेण पुनाहिमा शुक्रेण देवदीत्यते अग्ने कृत्वा क्रतु कुम्रणे यत्ते पवित्रमर्चिषि अग्ने विततमन्तर ब्रह्मदेन पुनीमहे उभाभ्यां देवसविदः पवित्रेण सवेन च इदं ब्रह्म पुनीमहे वैश्वदेवी पुनते देव्यागात् यस्मै भक्मीस्तनवो वीतपृष्ठाः तजामदन्तस्सदमार्त्येषु वजग्स्यामवतयोरगीणां वैश्वानरो रश्मिभिर्मा पुनात् वातप्राणीनि शिरोमयो भूः द्यावा पृथिवीपयसापयोभिः अर्धावरी यज्ञये मा पुनीतां बृहद्भिः सवितस्त्रुभिः वरशिष्टैर्देवन्मभिः अग्ने दक्षैः पुनाहिमा येन देवा अपनत येनापो दिव्यं कषः तेन दिव्येन ब्रह्मणा इदं ब्रह्म पुनीमहे यः पापमानी दध्येति ऋषभिः संहृतकं रसं सर्वकं सपूतमस्यादि स्तुतिरं मातरिश्वर पापमानीर्यो अध्येति ऋषभिः संहृतकं रसं तस्मै सरस्वती दुहे मधुदकं पापमानी स्वस्त्यगनीः सुदुःखाहि पयस्वतीः ऋषिभिः संभृतो रसः ब्राह्मणेष्वमृतकं हितं पापमानीर्तिशन्तुनः यमल्लोकमथो अमं कामान् समर्थयन्तुनः देवीर्देवैः समाभृताः पापमानी स्वस्त्यगनीः सुदुःखाहि घृतस्थितः ऋषिभिः संभृतो रसः ब्राह्मणेष्वमृतकं हितं येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पापमान्यः पुनन्तमा प्राजापत्यं पवित्रं शतोद्यामकं हिरण्मयम् तेन ब्रह्मविदो वयं पूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रस्वनीति सहमापुनात् सोमस्वस्त्या वरुणः समीच्या यमो राजा प्रवृणाभिपुनातुमा जातवेदा मूर्तिगिन्त्या पुनात् तच्छंयोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तनः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं च गातु भेषजं छिन्नो अस्तुद्विपदे सिञ्चतुष्पदे ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः
प्राच्यां दिशि देवार्त्वजो मार्जयन्तां दक्षिणायां दिशि मासाः पितरो मार्जयन्तां प्रतीत्यां दिशि गृहा पशवो मार्जयन्तां उदीत्यां दिश्याप वोषधयो वनस्पतयो मार्जयन्ताम् ऊर्ध्वायां दिशि यज्ञः संवत्सर यज्ञपदर्मार्जयन्तां मदोधराधरैर्नायेभ्यो मार्जयन्ताम् अनोरणीयान् महतो महीयान् आत्मा गुहायां निहितोऽस्यदन्तः समकृतं वस्य दिवेतशोको धातु प्रसादान् महिमानमीहं सप्त प्राणा प्रभवन्ति तस्मात् सप्तार्चितः समितः सप्त जिह्वाः सप्त इमे लोका येषु चरन्ति प्राणा गुहाशयान् निहिताः सप्त सप्त अतः समुद्रा गिरयश्च सर्वेऽस्मात् स्यन्दन्ते सिन्धवः सर्वरूपाः अतश्च विश्वावोषधयो रसाश्च येनीशभूतस्तिष्ठत्यन्तरात्मा ब्रह्मा देवानां पदवेः कवीनां ऋषर्विप्राणां महिषो मृगाणां श्येनो गृध्रा नागस्वति दर्वणा नागं सोमः पवित्रमत्येति रेभन्ने वरुणाय नमः विश्वक्सेनाय नमः पुनः पादर्घ्याचमनीयं समर्पयामि विश्वक्सेनाय नमः यथासुखं यथास्थानं प्रवेशयामि शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च ஓம் நமோ நாராயணாய. பகவானுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே நாம் இவ்வளவு நேரம் சேவித்தது விஸ்வக்சேன ஆராதனை சுத்தி புண்ணியாவாசனம். இந்த விஸ்வக்சேன ஆராதனை சுத்தி புண்ணியாவாசனத்தை தொடர்ந்து அங்குரார்ப்பண கைங்கரியத்தை சேவிக்க இருக்கிறோம். அங்குரார்ப்பணம் என்பது திருமுலை சாற்றுதல். தேவர்களை ஆவாகனம் செய்வதற்காக மண் பாலிகைகளிலே நவதானியங்களை சேர்த்து அதிலே நீர் சேர்த்து திருத்துழை அக்ஷதை போன்றவைகளால் தேவதைகளை பூஜை செய்கிறார்கள். அவர்களை வரவேற்று அந்த கைங்கரியத்தை செய்து கொண்டிருக்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. கல்யாணம் என்றாலே திருமலை அப்பனுடைய கல்யாணம்தான் உலகிலே சிறப்பு வாய்ந்தது. அதேபோல் ருக்மிணி கல்யாணம், ஆண்டாள் கல்யாணம் மற்றும் இப்படி வரிசையாக பகவானுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்தை நாம் சேவிக்கும் பாக்கியத்திலே இன்று அந்த ஆண்டாள் கல்யாணத்தை பற்றி சற்று தெரிந்து கொள்ளலாம். தமிழகத்திலே ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரிலே வாழ்ந்து வந்தார் பெரியவர், அதாவது பெரியாழ்வார். அந்த ஆண்டாள் கல்யாணம் எப்படி நடந்தது என்று பார்க்கையிலே இன்னும் ஒரு மாதத்திலே சரியாக நமக்கு மார்கழி மாதம் பிறக்கப் போகிறது. அந்த மார்கழி மாதத்திலே ஆண்டாள் இயற்றிய திருப்பாவை பாசுரங்களும் மற்றும் தினந்தோறும் அந்த எம்பெருமானுக்கு அந்த மார்கழி மாத உற்சவமும் நடைபெறுகிறது. அதற்கு முக்கிய காரணமானவள் ஆண்டாள், அதாவது பெரியாழ்வாரின் மகள். அந்த ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரிலே வாழ்ந்து வந்த மகான் பெரியாழ்வார் வைஷ்ணவ சம்பிரதாயப்படி அவருக்கு திருமணம் ஆகியும் நீண்ட காலம் புத்திரபாகியம் இல்லாமல் அதன் பிறகு அவர் ரங்கநாதனையும் லக்ஷ்மி தேவி தாயாரையும் சேவித்து வந்தார். அப்படி சந்தான குறைபாட்டை நீக்கும்படி வேண்டிக் கொண்டு அந்த பகவானிடம் வரும்பொழுது திருத்துழாய் வனத்திலே லக்ஷ்மி தேவி குழந்தையாக மாறினாளாம். அவருக்கு நந்தவனத்திலே துளசி மாடம் அருகிலே ஒரு பெண் குழந்தை கிடைத்தது. இதோ திருமுலை சாற்றுதல் கைங்கரியத்தை முடித்துக்கொண்டு ரக்ஷைகளுக்கு பூஜை, ரக்ஷா பூஜை ஆரம்பமாகிறது. वैवाहिक महोत्सवाक्यंजकर्मणि प्रतिशरबंधन देवताराधनं करिष्ये. ओम यमर्पयन्ति मनयो हविर्योजो हिडानर्वबधा विराजन्ने तम्मयदोषा यस्याननाग्नं विपणानि वदन्तु. ओम शेषमावाहयामि, सहस्रशीर्षमावाहयामि, अनन्तमावाहयामि, नागराजमावाहयामि. रक्षासूत्र अधिष्ठान देवताभ्यो नमः. शेषाय नमः. आसनं समर्पयामि, पाद्यं समर्पयामि, अर्घ्यं समर्पयामि, आचमनीयं समर्पयामि, गुडोपहारं निवेदयामि, ताम्बूलं समर्पयामि, सर्वोपचारान् समर्पयामि. तत्पुरुषाय विद्महे सहस्रफणाय धीमहि तन्नः शेष प्रचोदयात्. सर्वोपचारान् समर्पयामि. ओम स्वस्ति नो मिमीतामश्विना भगः स्वस्ति देव्यतीतरनिर्वणाः स्वस्ति पूषा असुरो दधातन स्वस्तित्यावा पृथिवी सुचेतुना स्वस्तये वायुमप्रवामहे सोमं स्वस्ति भवानस्य यस्पतिः बृहस्पतिं सर्वागणं स्वस्तये स्वस्तया आदित्यासो भवन्तु नः विश्वे देवानो अद्या स्वस्तये वैश्वानरो वसुरग्निः स्वस्तये देवा मन्त्रभव स्वस्तये स्वस्ति नो रुद्रः पात्वं हासः स्वस्ति मित्रावरुणा स्वस्ति मध्ये रेवती स्वस्ति न इन्द्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नो अदिते कृधि स्वस्ति बन्धामनोचरेम सूर्या चन्द्रमसा विवा
पुनर्दधदाज्ञादाजानदा सङ्गामेमहि स्वस्त्यजानन्तार्क्षमरिष्टनेमिं महद्भूतं वायसं देवतानाम् असुरज्ञमिन्द्रासकं समत्सु बृहद्यशोनावामिमारोहेम अम्भोमुचामाङ्गिरा सङ्गयं च स्वस्त्यात्रेयं वनासा चतार्क्ष्यम् प्रियादवानिशरणं प्रपद्ये स्वस्तिशं बाधे स्वभायन्न अस्ति शुभागं शुभाम्. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. அப்படி அந்த ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரிலே பெரியாழ்வார் என்றவர், அதாவது வைஷ்ணவ பக்தர், மாலா கைங்கரியம் செய்து பகவானுக்கு சமர்ப்பித்து வந்தார். அப்படி அந்த திருத்துழாய் வனத்திலே, நந்தவனத்திலே, துளசி மாடம் அருகிலே ஒரு பெண் குழந்தை கிடைக்க, அந்த குழந்தை தனக்கு மகளாக வாய்த்தது லக்ஷ்மி என்று பெரியாழ்வார் தெரியவில்லை முதலில். தினமும் அவர் ரங்கநாதருக்கு துளசி மாலை வழங்கி வந்தாராம். ஆண்டாள் பெரிய பெண்ணாக வளர்ந்துவிட்ட நிலையிலும் தினமும் அந்த எம்பெருமானுக்கு ஒரு துளசி மாலை வழங்குவதை பெரியாழ்வார் நிறுத்தவில்லை. தற்செயலாக ஒரு நாள் சுவாமிக்கு சாத்தும் அந்த மாலையை ஆண்டாள் அணிந்து நிற்பதை கண்ட அந்த பெரியாழ்வார்க்கு கோபம் வந்துவிட்டது. சுவாமிக்கு அணிவிக்கப்படும் மாலைக்கு கொடுக்கப்பட வேண்டிய மரியாதையை அளிக்காமல் அதை அணிவதா என்று தன் மகளை கடிந்து கொண்டாராம். ஆண்டாள் அணிந்த மாலையை தூக்கி தூர எறிந்துவிட்டு புதியதாக ஒரு மாலையை தொடுத்து அதை கொண்டு சென்று ரங்கநாதரை தரிசிக்கச் சென்றாராம். துளசி மாலையை ரங்கநாதர் கழுத்தில் போட்டதும் அந்த மாலை கீழே விழுந்துவிட்டது. சுவாமியின் கழுத்திலே நிற்கவில்லை. மீண்டும் மீண்டும் பலமுறை மாலையை சுவாமி கழுத்தில் போட்டும் மாலை நிற்கவில்லை. இதனால் வருத்தமடைந்த பெரியாழ்வார் சுவாமியிடம் தன்னுடைய துளசி மாலை ஏற்றுக்கொள்ளும்படி வேண்டினாராம். அப்பொழுது அந்த பகவானே அவர் முன் தோன்றி ரங்கநாதராக பெரியாழ்வார் வீட்டிலே வளரும் ஆண்டாள் என்ற குழந்தைக்கு தன் மனைவி ஸ்ரீ லக்ஷ்மி தேவியே என்றும், அவரின் பிள்ளையில்லாத குறையை போக்கவே ஆண்டாள் என்ற பெயரில் குழந்தையாக அவர் வீட்டில் வளர்த்து வருகிறாள் என்றும் சொல்லி அவள் சூடிக்கொண்ட மாலையே தனக்கு வேண்டும் என்றும் தெரிவித்தாராம். ஸ்ரீ லக்ஷ்மியே தனக்கு மகளாக வாய்த்ததை எண்ணி பெரும் மகிழ்ச்சி அடைந்த அந்த பெரியாழ்வார் தன் மீது இரக்கம் காட்டிய பகவானுக்கு நன்றி தெரிவித்தாராம். ஆண்டாள் திருப்பாவை, நாச்சியார் திருமொழி என்று புகழ்பெற்ற பாடல்களை பாடினாள். அப்படி அந்த அவதரித்தவள் தான் ஆண்டாள். அதிலே ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரிலே பெரியாழ்வாரின் மகளாக, அங்கே மகாலட்சுமியின் அம்சமாக ஆண்டாளும், இது இங்கே திருமலை அப்பனாக திருவேங்கடவனும் எழுந்தருளி பக்தர்களை அருள் பாலித்து கொண்டிருக்கும் அந்த பகவானுக்கு ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்தை நடத்தி கொண்டிருக்கிறார். பகவானுடைய கரத்திலே அந்த ரக்ஷையை அணிவிக்க உள்ளார். ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்தை நாம் சேவித்து கொண்டிருக்கிறோம். அப்படி அந்த ஆண்டாள் கல்யாணம் என்றால் மிகவும் சிறப்பு வாய்ந்தது. அந்த ஆண்டாள் ஆனவள் ஆடிப்பூரத்தை மறக்க மாட்டார்கள். ஏனென்றால் ஆடிப்பூரத்தில் நின்றுதான் அவள் அவதரித்தவள். அதேபோல் அந்த பகவானின் ஆதர்ஷ புருஷனாக விஷ்ணுவிற்கும் பொருத்தமான நாள்தான் அந்த பகவானுடைய, அதாவது ஆண்டாளுடைய திருநக்ஷத்திரம். அவளை திருமணம் செய்து கொள்வோம். இப்படி அந்த பகவான் எப்பொழுதும் கூட பக்தர்களை அருளி செய்வதிலே வல்லவர். அந்த பகவான் இதோ இங்கே திருமலை அப்பனாக தோன்றி ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்தை ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறார். அந்த விதமாக பெரியாழ்வார் என்று எதற்கு அழைக்கப்பட்டார் என்று பார்க்கும் பொழுது, ஆண்டாளை திருமணம் செய்து கொண்டதற்காக விஷ்ணு சித்தர் பெரியாழ்வார் ஆனார் என்று புராணங்கள் கூறுகின்றன. அடுத்து நாராயணபுரம் திருநாராயணன். வைஷ்ணவ தலங்களில் ஆடிப்பூரம் விழாவில் வெகு விமர்சையாக நடைபெற்று கொண்டிருந்த நேரத்திலே ஆடிப்பூரம் வெள்ளிக்கிழமை அன்று வந்தால் விசேஷமான நாளாக கருதப்பட்டது. இப்படி அரங்கனாலேயே அழைக்கப்பட்ட ஆண்டாளுக்கு கல்யாண வைபோகங்கள் ஏதும் இல்லாமல் அரங்கனுடன் ஐக்கியமாகி விட்டாளே என்று வருத்தம். அப்படி
ஆண்டாள் தான் வாரணமாயிரம் பாசுரங்களிலே தன் கல்யாணம் எப்படி நடந்தது என்று குறிப்பிட்டு அந்த பாசுரங்களை பாராயணம் செய்பவர்களுக்கு விவாகம் நடைபெறும் என்று ஒரு ஐதீகம். திருநாராயணன் என்றால் மேலக்கோட்டையிலே நாராயணன். அப்படி அந்த பகவான் 108 திவ்ய தலங்களிலே ஒன்றான திருக்கண்ணபுரம் என்றும் இருக்கிறது. 5 ஆழ்வார்களால் பாடல் பெற்ற தலம். பஞ்ச கிருஷ்ண க்ஷேத்திரங்களுள் நடுநாயகமாக திகழும் இந்த தலத்தின் எம்பெருமான் சௌரிராஜ பெருமாள், தாயார் கண்ணபுர நாச்சியார் என்றும் ஓம் நமோ நாராயணா என்னும் அந்த திரு 8 எழுத்து மந்திரத்தின் முழுமையான வடிவம் இந்த திவ்ய தேசத்திலே ஸ்ரீ சௌரிராஜ பெருமாளாக விளங்குகிறார். இந்த தலத்திலே ஒவ்வொரு ஆண்டும் நடைபெற்று வரும் மகா மகோத்சவத்திலே வைகாசி பிரம்மோற்சவமும் சிறப்பு வாய்ந்தது என்றும், மாசி மகோத்சவத்தில் மாசி மகத்தன்று புதுவை உள்ள அங்கே திருமலைராயன் பட்டணம் என்ற ஊருக்கு சௌரிராஜன் பெருமாள் எழுந்தருளி தீர்த்தவாரி காண்பாராம். இப்படியாக ஒவ்வொரு தலத்திலும் ஒவ்வொரு நாமத்தை வைத்துக்கொண்டு அந்த நாச்சிமார்களுக்கும் பெயரை மாற்றி அந்த திவ்ய தேசங்களிலே எழுந்தருளி பக்தர்கள் அருள்பாலித்து கொண்டிருப்பவன் அந்த எம்பெருமான். ஸ்ரீதேவி பிராட்டிக்கு ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்தை முடித்து கொண்டு பூமி பிராட்டிக்கு ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்தை ரக்ஷை அந்த பூமி பிராட்டியினுடைய திருக்கரத்திலே அணிவிக்க உள்ளார். தராரமண கோவிந்தா கோவிந்தா என்று திருமலை அப்பனுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியம் நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது. அப்படி ஒவ்வொரு தலத்திலும் அந்த பகவான் பக்தர்களை அருளிச் செய்கிறார். அதேபோல் திருமங்கை ஆழ்வாரின் பெரிய திருமொழி பாசுரத்திலே வடித்தடங்கள் மலரளவோ வரையாக துள்ளி இருப்பாள் என்பதை வலையாகம் கொண்டு மீனவர் குலத்து மங்கையை பெருமானுக்கு மணமுடித்து மாப்பிள்ளையாகவும் செய்து கொண்டாடி வருகிறார்களாம். அப்படி அன்றைய தினம் கடற்கரையில் மீனவர்கள் சௌரிராஜ பெருமாளை உரிய மரியாதையுடன் பெருங்களிப்பில் வரவேற்பார்கள். அதன் பிறகு மகிழ்ச்சி அடைந்தவர்களாக மாப்பிள்ளை மாப்பிள்ளை என்று அழைப்பார்களாம். ராமபிரானை மிதிலை நகரத்து மக்கள் கொண்டாடி மாப்பிள்ளை என்ற பேரானந்தத்திலே வரவேற்றது போல் இன்றும் மீனவர்கள் மகிழ்ச்சியில் ஆழ்வதை அன்றைய தினம் காணலாம். சௌரிராஜ பெருமாள் கருடாருடராய் திருமலைராயன் பட்டினத்திலே மாசி மாதம் பௌர்ணமி அன்று மாலை மஞ்சள் வெயிலில் எழுந்தருளுகிறார் என்று புராணம் கூறுகிறது. இதோ இதைத் தொடர்ந்து அக்னி பிரதிஷ்டை ஹோமத்தை செவிக்கலாம். அக்னியை ஆவாகனம் செய்கிறார்கள். அதன் பிறகு ஹோமம் நடத்தப்படுகிறது. ஓம் நமோ வெங்கடேசாய. मह्यं यदन्त मम यान हव्याकोति सत्यामनस्वामी अस्ते ये नोमानिकाङ्कतमच्चनाहं विश्वे देवासो अधिपूजयामि देवी षडमे रणक्रोध विश्वे देवास हवीरयध्वं महास्महि प्रजया मातनोभिर्मारधामत्विषते सोमराजन् जातवेदो भुवनस्य नेतयः सिञ्चतपसो युत्यनिष्यते अग्निमश्वत्थादिरिह व्यवाहकं शमे गर्भाञ्जनयन्योमयो भूः घृतप्रदीको कृतयो निरग्निकृतैः समिद्धो कृतमस्यान्नम् घृतप्रशस्त्वादिरितो वहन्ति घृतं पिबन् सुखितायक्षिदेवान् अदितेन मन्यस्व हनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसविदप्रसव ब्रह्मजिज्ञानं प्रथमं पुरस्तात्वधीमतस्सुरुचो वेन आवः समुद्रया पवस्य विष्टासतस्य यो नमसतस्य भवः ॐ भूब्रह्माणमावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि पितामहमावाहयामि हिरण्यगर्भमावाहयामि ब्रह्मणे नमः इदमासनं सोमो धेनुकं सोमो अर्वन्तमाशकं सोमो वीरङ्करमन्यं ददाति साधन्यं विदत्यकं च भेगं तस्त्रमणं योददाति तस्मै ॐ भूः सोमावाहयामि ॐ भुवर्यज्ञाङ्कमावाहयामि ओगं सुवृन्दमावाहयामि ॐ भूर्भुवस्सुश्चन्द्रमावाहयामि सोमस्य इदमासनं ब्रह्मणे नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि सोमाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावर्धयत्पन्नागस्य पृष्ठे यजमानोऽस्ति सप्तर्षीणागं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रेमं यज्ञं यजमानञ्जधेः ओम प्रोक्ष्य सोम प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावर्धयत्पन्नागस्य पृष्ठे यजमानोऽस्ति
सप्तर्षीनागं सुकृतां यत्र नागस्तत्रेमं यज्ञं चिनमानं च धीः ॐ प्रोक्ष्य पवित्रे स्तो वैष्णव्ये स्तो यज्ञये स्तो वायुपूते स्तो विष्णोर्मनसा पूते स्तो यज्ञस्य वावने स्तः परशरश पवित्रे स्तो वैष्णव्यो देवसविदप्रसवमनात् तच्छत्रेण पवित्रेण वधो सूर्यस्य रश्मिभिरापो देवीरग्रे भवो अग्ने घुमोऽग्रयमं यज्ञं लिखिताग्ने यज्ञवदन्धत्त युष्मानिन्द्रो वृणीतपुत्रतूर्ये यूयमिन्द्रमवृणीर्धं वृत्रतूर्ये प्रोक्षितास्था विष्णुमावाहयामि महाविष्णुमावाहयामि सदा विष्णुमावाहयामि गन्धर्वोऽस विश्वापसर विश्वस्मादीशतो यजमानस्य बृहद्रीडितः ब्रह्मण्णपप्रणीष्यामि यजमानवाचं यच्छा प्रणययज्ञं देवतावर्धयत्तन्नागस्य पुष्टेयमानोऽस्ते सप्तर्षीनागं सुकृतां यत्र नागस्तत्रेमं यज्ञं यजमानं च धीः ॐ प्रणया सोमापप्रणीष्यामि यजमानवाचं यच्छा प्रणययज्ञं देवतावर्धयत्तन्नागस्य पुष्टेयमानोऽस्ते सप्तर्षीनागं सुकृतां यत्र नागस्तत्रेमं यज्ञं यजमानं च धीः ॐ प्रणया कोमप्रणितसमप्रणयित्वापो देवी प्रणयानि यज्ञकं सकं साधयन्तनः प्रजापतिमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्निशोमावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि ब्रह्माणमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि वसूनावाहयामि मरुतावाहयामि रुद्रानावाहयामि अपवपस्पृश्य श्रीमहाविष्णुमावाहयामि बृहस्पतिमावाहयामि मित्रमावाहयामि वरुणमावाहयामि आदित्यानावाहयामि अश्विनावाहयामि पूषणमावाहयामि कक्षमावाहयामि कक्षदेवतसोममावाहयामि औपासनयज्ञमावाहयामि यज्ञविश्वान् देवानावाहयामि सर्वदेवानावाहयामि आज्यभागे प्रजापतिये दृष्टिर्वभामि ब्रह्मणे दृष्टिर्वभामि इन्द्राय दृष्टिर्वभामि अग्नये दृष्टिर्वभामि सोमाय दृष्टिर्वभामि अग्नये दृष्टिर्वभामि सोमाय दृष्टिर्वभामि अग्निशोमाभ्यां दृष्टिर्वभामि प्रजापतिये दृष्टिर्वभामि ब्रह्मणे दृष्टिर्वभामि इन्द्राय दृष्टिर्वभामि वसुभ्यो दृष्टिर्वभामि मरुद्भ्यो दृष्टिर्वभामि रुद्रेभ्यो दृष्टिर्वभामि अपवपस्पृश्य श्रीमहाविष्णवे दृष्टिर्वभामि बृहस्पतये दृष्टिर्वभामि मित्राय दृष्टिर्वभामि वरुणाय दृष्टिर्वभामि आदित्येभ्यो दृष्टिर्वभामि अस्भ्यां दृष्टिर्वभामि पूष्णे दृष्टिर्वभामि कक्षाय दृष्टिर्वभामि कक्षदेवतसोमाय दृष्टिर्वभामि औपासनयज्ञाय दृष्टिर्वभामि यज्ञदेवतविश्वेभ्यो देवेभ्यो दृष्टिर्वभामि सर्वदेवेभ्यो दृष्टिर्वभामि आद्यं तृप्यतिस्रयामि चिरं तृप्यतिस्रयामि अग्नेत्योदरसि समितिषि स्वाहा अमृतमसिमारुणमसि अन्तरितकं रक्षो अन्तरिता अरातयः प्रत्यष्टकं रक्ष प्रत्यष्टा अरातयः चित्तरिस्तापना तच्छित्रेण पवित्रेण वधो सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा वाक्पतिस्वापना तच्छित्रेण पवित्रेण वधो सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा देवस्वापना तच्छित्रेण पवित्रेण वधो सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा करसम्पूर्णावासमिथो गृहीत्वा मूलाग्राभ्यां कृतं स्पर्शयित्वाभ्यर्च्य अक्षत आज्य चरुभिः इमामेकनिष्ठगाधेनवः सन्त्वेका च शतं च सहस्रं च आयुतं च नियुतं च प्रगितं च अर्पदं च न्यर्पदं च समुद्रस्य मध्यं च अन्तस्य पदार्थस्य इमामेकनिष्ठगाधेनवः सन्तु इंद्राय नमः अग्नये नमः यमाय नमः नृतये नमः वरुणाय नमः वायवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः अग्नये नमः जातवेदसे नमः सुहोतसे नमः जनाप्रभवे नमः विसर्पणे नमः महीश्वानराय नमः जातवेदसे नमः अदितेन मन्यस्व हनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसविदप्रसुभा षष्टिशतसहस्राण्यजतमक्षयमर्पदमानय अयन्तयित्वा आत्मा जातवेदस्तेनेत्यस्व वर्तस्वदेतवर्तकिडास्मान् प्रजगा पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा वायुव्यादाग्नेयान्तं प्रजापतये स्वाहा नैऋत्यादीशानान्तं इन्द्राय स्वाहा अग्नये स्वाहा सोमाय स्वाहा अग्निशोमाभ्याग स्वाहा प्रजापतये स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा इन्द्राय स्वाहा वसुभ्य स्वाहा मरुद्भ्य स्वाहा रुद्रेभ्य स्वाहा अपवपस्पृश्य श्रीमहाविष्णवे स्वाहा बृहस्पतये स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा आदित्येभ्य स्वाहा अस्भ्याग स्वाहा पूष्णे स्वाहा कक्षाय स्वाहा कक्षदेवतसोमाय स्वाहा औपासनयज्ञाय स्वाहा यज्ञदेवतविश्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वदेवेभ्य स्वाहा द्रव्याभिकार्य ओं भूस्वाहा ओं भवस्वाहा ओं स्वस्वाहा ओं भूर्भुवस्वस्वाहा अदितेन्वमग्रस्ताः अनुमतेन्वमग्रस्ताः सरस्वतेन्वमग्रस्ताः देवसविदप्रासाभिः अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकस्य श्रीभूनिलासमेत श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकमहोत्सवाख्यन्तक्रमणे उपासनाग्नौ आघारान्ते स्वरमन्त्राक्षरक्रियादोषप्रायश्चित्तार्थमतो देवादि षट्मैष्टमहोमं होष्ये अदितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसविदप्रसुभा ॐ अतो देवा अवन्तनो यतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिः स्वाहा इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानदधेवनं समूढमस्य भागं सुरे स्वाहा
त्रीणि पदापतिक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णो कर्माणि वत्सदयतो व्रतानि वस्पशे इन्द्रस्य गित्यसखा स्वाहा तद्विष्णो परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूर्यः दिवे विचक्षुरादर्ग स्वाहा तद्विप्रासोऽपि पण्यमोजा कृपाकं सस्समिन्धले विष्णोर्यत्रमं पदक स्वाहा ॐ भू स्वाहा ॐ भव स्वाहा भोगं सव स्वाहा स्वाहा अदितेन्वमग्रस्ताः अनुमतेन्वमग्रस्ताः सरस्वतीन्वमग्रस्ताः देवसवितप्रासावीः ఆడరు పాడరు అప్సరోగణము ఆడరు పాడరు అప్సరోగణము వేడేమూలిందరు విభవము నేడు వేడేమూలిందరు విభవము నేడు ఆడరు పాడరు అప్సరోగణము వీడేమూలిందరు విభవము నేడు ఆడరు పాడరు అప్సరోగణము ఆడరు పాడరు అప్సరోగణము కమలారమణుని కళ్యాణమునకు తమినదె గరుడ ధ్వజమిసగి కమలారమణుని కళ్యాణమునకు తమినదె గరుడ ధ్వజమిసగే కైమలుచు మ్రోసెను దివ్య దుందుభులు గమనించరు దివి గల దేవతలు కైమలుచు మ్రోసెను దివ్య దుందుభులు గమనించరు దివి గల దేవతలు ఆడరు పాడరు అప్సరోగణము వీడేమూలిందరు విభవము నేడు ఆడరు పాడరు అప్సరోగణము ఆడరు పాడరు అప్సరోగణము ओम श्रौतस्मार्तादिकं कर्मणिहनं येन सूत्रितं तस्मै समस्तवेदार्थविदे विखनसे नमः। अथ भगवतो महापुरुषस्य श्रीमदादिनारायणस्य अचिन्त्यापरिमितशक्त्या भ्रयमाणस्य महाजलोकस्य मध्ये परिभ्रममाणानाम् अनेककोटिब्रह्माण्डानां एकदमे पृथिवीयप्तेजो वायुव्याकाश अहङ्कारमहदव्यक्ताख्यसप्तावरणीरावृते अस्मिन् महदि ब्रह्माण्डे आधारशक्ति श्रीवराहकूर्मानन्ताष्टदिक्कजो परिप्रतिष्ठितानाम् अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पातालाख्य सप्तलोकानां ऊर्ध्वभागे भूलोके भुवर्लोक सुवर्लोक महर्लोक जनोलोक तपोलोक सत्यलोकाख्य षल्लोकानाम् अथोभागे महानालायमानस्य फणिराजस्य शेषस्य सहस्रफणामणिमण्डलमण्डिते ऐरावतपुण्डरीकवामनकुमुदाञ्जनपुष्पदन्तसार्वभौमसुप्रतीकाख्य अष्टदिक्दण्डि शुण्डादण्डोत्तम्भिते अमरावते तेजोपदे संयमने रक्षोपदे सिन्धुपदे गन्धवत्यलकापदे यशोपदेत्यष्टदेवपुरी विराजिते इन्द्राग्नियमनिर्दिवर्णवायुकुबेर ईशानाख्य
अष्टलोकबालकपरिपालिते लोकालोकाचलबलहिते लवणेक्षुसुरा सर्पितशिक्षेरसुप्तोदकाख्यसप्तार्णवपरिवृते जम्भूप्लक्षकुशक्रौञ्चशाकशाल्मलिपुष्पराख्यसप्तद्वे पद्मीविदे माहेन्द्रमलयसख्य अदृक्षद्विन्ध्यवारयात्राख्यसप्तकुलपर्वतविराजिते भारतिगम्बरुषहारीलावृतपत्राश्वकेतुकबालकहिरण्यकर्मणककुरुवर्षाख्यनपवर्षाणां मध्ये भरतवर्षे इन्द्रकशेरुताम्रकभस्तिपुण्णाकगन्धर्वसौम्यवर्णभरताख्यनवखण्डानां मध्ये भरतखण्डे मम अनेकजन्मसु यः जन्मनि च एतत्क्षणपर्यन्तं बाल्ययौवनकौमारवार्धकेशरहसि प्रकाशे च आवृत्त अनावृत्त महापातकादि समस्तदरितक्षयार्धं दशपूर्वेषां दशापरेषां मत्वं स्यानां मातृवंस्यानां सर्वेषां पितॄणां कुम्भीपाकलोहितधामातपसङ्घातकालसूत्रादि विविधेभ्यो महाघोरेभ्यो नरकेभ्यः उत्तीर्य तने सूर्यमण्डलपर्यन्तं कृतरासेर्वर्षसहस्रावसाने एकैकतनापकर्षणक्रमेण सर्वरास्यपकर्षणसंहितकाले श्रीहरिलोके निवाससित्यर्थं त्रिगणीकृत अग्निष्टोम अतिरात्राप्तोर्यामधान्तमनवाजपेयपौण्डरीकास्वमेधाधि शतकृतपुण्यफलावाप्यर्थम् आमोदप्रमोदसम्मोदवैकुण्ठाख्यलोकेषु सालोक्यसामीप्यसारूप्यसायुज्यपदमिति चतुर्विध मोक्षफलसित्यर्थम् अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्डनायकस्य परव्यूह विभव अन्तर्यामि अर्चापदारस्वरूपस्य श्रीभूनिलासमेत श्रीनिवासस्वामिनः श्रीविघ्नो मुनीन्द्रमदानुसारभिर्भृक्पादिभिर्मन्वादिभिर्वशिष्टादिभिः दिव्यमहर्षिभिः ऋक्तकुह्यधर्मपुराण इतिहासकल्पोक्त सकलफलावाप्यर्थं कन्यादानं करिष्ये अस्य श्रीमदादिनारायणस्य अनेककोटिब्रह्माण्डनायकस्य अनन्तकल्याणगुणगणगाम्भीर्यस्य दिव्यमङ्गलविग्रहस्य शङ्खचक्रशार्ङ्गकौमोदकी नन्दकस्य श्रीमतो वैकुण्ठनायकस्य श्रीमद्वैखानसभगवतशास्त्रोक्तमार्गेण आङ्गीरसभारहस्पत्य भारद्वाजत्रयार्हेय प्रवरान्वित भारद्वाजगोत्रोद्भवस्य परव्यूहविभव अन्तर्यामि अर्चावताररूपस्य श्रीमहाविष्णोः परब्रह्मणो नप्त्रे आङ्गीरसभारहस्पत्य भारद्वाजत्रयार्हेय प्रवरान्वित भारद्वाजगोत्रोद्भवस्य जगत्कारणभूषस्य मूलप्रकृति स्वकीयमानस्य त्रिगुणात्मकस्य गुणत्रयकर्मणोऽख्यातिवशात् उत्पत्तिस्थितिलयकारणभूषस्य श्रीमहाविष्णोः परवासुदेवशर्मणः पौत्राय आङ्गीरसभारहस्पत्य भारद्वाजत्रयार्हेय प्रवरान्वित भारद्वाजगोत्रोद्भवस्य समस्तदेवता निकुटमकुटमणिगण विसृम्भितपादारविन्दस्य श्रीमहाविष्णोः आदिनारायणशर्मणः पुत्राय आङ्गीरसभारहस्पत्य भारद्वाजत्रयार्हेय प्रवरान्वित भारद्वाजगोत्रोद्भवाय भक्तलोकपरिपालनाय किरीटहारकेयूर दिव्याभरणभूषिताय दिव्यपीताम्बरधराय दिव्यमाल्योभिशोभिताय निजावताराय स्वर्णगरुडवाहनारूढाय अचिन्त्यदिव्याद्भुतनित्ययौवनस्वभावलावण्य तेजो रत्नाकराय अखिलशाखाध्यायिनो श्रवणनक्षत्रे मकररासौ जाताय श्रीनिवासपरब्रह्मणे वराय ऋग्यजस्सामाधर्मणसकलवेदाध्यायिनी भार्गवत्स्यमन आप्नवान और्ववैदलपञ्चार्हेय प्रवरान्वित भार्गवसगोत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारवतीं सर्वाङ्गनासम्मोहनसंसेवितपादारविन्दां श्रीमहाविष्णोः वक्षस्थलनिवासिनीम् अयोनिजां भृगोः सङ्कल्पतनयां उत्तरफल्गुणी नक्षत्रे कन्यारासौ जातायां श्रीनेमीनाम्नीमिमां कन्यां दास्यामि ऋग्यजस्सामाधर्मणसकलवेदाध्यायिनीं काश्यप आवत्सारणी ध्रुवत्रयार्हेय प्रवरान्वित काश्यपसगोत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारवतीं सर्वाङ्गनासम्मोहनसंसेवितपादारविन्दां श्रीमहाविष्णोः अत्यन्तमनोहरीं अत्यन्तसौन्दर्यवतीं बहु श्यामलाङ्गीं कश्यपप्रजापतेः सङ्कल्पतनयां रेवती नक्षत्रे मीनरासौ जातायां श्रीभूदेवीनाम्नीमिमां कन्यां दास्यामि कन्यां कनकसम्पन्नां कनकाभरणैर्युतां दास्यामि विष्णवे तुभ्यं ब्रह्मलोकचिकीर्षया कन्यां सालङ्कृतां साध्वीं सुशीलाय सुमेधसेत् प्रयतोऽहं प्रयच्छामि धर्मकामार्थसिद्धये विश्वम्भरा सर्वभूता साक्षिण्यः सर्वदेवताः मां कन्यां प्रदास्यामि प्रीणातु कमलापतिः कन्यादानमुहूर्तस्य मुहूर्त अस्ति பக்தர்களே, இதுவரையில் நாம் சேவித்தது மகா சங்கல்பம் கன்யாதானம் கைங்கரியங்களை. இப்பொழுது சேவிக்க இருப்பது மாங்கல்ய பூஜை. திருவேங்கடமுடையானுக்கும்
ஸ்ரீதேவி பூதேவி பிராட்டிமார்களுக்கும் தினந்தோறும் நடைபெற்று கொண்டிருக்கும் இந்த திருமண உற்சவத்தை, அதாவது கல்யாண உற்சவத்தை நேரடி ஒளிபரப்பில் செவித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். அந்த கல்யாண வைபவங்களை பற்றி தெரிந்து கொண்டிருக்கிறோம். அடுத்ததாக செங்கமலவல்லி திருமண வைபவம். எங்கிருக்கிறாள் இந்த செங்கமலவல்லி என்று பார்க்கும் பொழுது, தஞ்சாவூருக்கு அருகே விஜயநாயக்கர் 32வது விஜயநாயக்கர் ஆண்ட அந்த இடத்திலே மன்னார்குடி ராஜகோபால சுவாமி திருக்கோவிலில் ஆயிரங்கால் மண்டபத்திலே அந்த திருக்கல்யாண மகோத்சவமானது நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது. மானசீகமாக அங்கே சேவிக்கலாம். இந்த தலத்திலே அந்த தாயாருக்கு ஹேமாப்ஜ நாயகி ஸ்வயம்வரமு என்று கூட கூறி செங்கமலவல்லியின் திருமண வைபவத்தை பற்றி மிகவும் சிறப்பாக கூறியுள்ளார்கள். மன்னார்குடி ராஜகோபால சுவாமி திருக்கோவிலில் மன்னன் விஜயராகவ நாயக்கர், குருகுல ஸ்ரீனிவாச தாத்தாச்சாரியார் ஆகியவர்கள் இருக்க, ராஜகோபாலனையும் செங்கமலவல்லி நாச்சியாரையும் எழுந்தருளச் செய்து இங்கே திருமணம் செய்தார்கள். இந்த இடத்திலே விஜயராகவன் முன்னின்று நடத்திய திருமண வைபவம். இப்படி அந்த செங்கமல நாச்சியாரும் ராஜகோபால சுவாமிக்கும் அழகான திருமண ஏற்பாடு நடைபெற்று திருமணமும் நடைபெற்றது. அதேபோல் இங்கே திருமலையப்பனுடன் ஸ்ரீதேவி பூதேவி சமேதன மலையப்ப சுவாமியினுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்தை நாம் நேரடி ஒளிபரப்பில் செவித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். திருமணம் செய்து கொள்வதற்காக ஹேமாப்ஜ நாயகி, அதாவது செங்கமலவல்லி பல்லக்கில் ஏறி வரும் பேரழகை விவரமாக வர்ணித்துள்ளார்கள். பொற்பல்லக்கிலே அமர்ந்துள்ள அந்த தாயார் அழகிய கருங்கூந்தலில் மல்லிகை முதலிய பூச்சரங்கள் சூரிய பிள்ளை, சந்திர பிள்ளை என்று போன்ற அணிகலன்கள் அணிந்து அழகுடன் நடந்து வருவதாகவும், குங்குமம், கஸ்தூரி, திலகம் ஆகியவற்றை அணிந்து ஜவ்வாது போன்ற வாசனை பொருள்கள் அவளுக்கு மணமூட்ட, காதுகளிலே தாடங்கம் புல்லாக்கு என்ற அலங்கார நகைகளோடு அழகுற திகழ்கிறாள். அதேபோல் இங்கே ஸ்ரீதேவி பூதேவி பிராட்டிமார்களுக்கு கூட மணப்பெண்ணாக நன்றாக அலங்காரம் செய்து அந்த மண்டபத்திலே கொண்டு வந்து ஆசீனப்படுத்தினார்கள். வரிசையாக எல்லா கைங்கரியங்களும் நடைபெற்று கொண்டிருக்கின்றன. இப்பொழுது அந்த மாங்கல்யங்களை சுத்தப்படுத்தி மஞ்சள் குங்குமம் இட்டு அதற்கு சந்தனம் மற்றும் திருத்துழாய், அக்ஷதை, புஷ்பங்கள் போன்றவைகளால் பூஜை செய்து வருகிறார் அர்ச்சக சுவாமி. அந்த அழகான திருமண காட்சியை நாம் SVBC தொலைக்காட்சி மூலம் நேரடி ஒளிபரப்பில் சேவிக்கும் பாக்கியத்தை அடைந்திருக்கிறோம். இவருக்கு நித்திய கல்யாணம், பச்சை தோரணம் என்னும் விதமாக தினந்தோறும் கல்யாண வைபோகம்தான். அந்த திருமலை அப்பனுடைய கல்யாண உற்சவத்திலே பங்கு கொண்டு நேர்ந்து கொண்டால் நம்முடைய வீட்டிலே திருமணமாகாதவர்களுக்கு கூட உடனடியாக திருமணம் நடைபெறும் என்றும் கூறப்படுகிறது. அப்படி திருமலையிலே நாம் நேரடி ஒளிபரப்பில் செவித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் பகவானுடைய கல்யாண உற்சவத்தை. அகிலாண்ட கோட்டி பிரம்மாண்ட நாயகன் திருமலை அப்பனுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவம் நாம் சேவித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். 7 மலைகளையும் தனதாக்கிக் கொண்டு வராக சுவாமியினிடம் வரம் பெற்று அந்த இடத்தை விரிவாக்கி அந்த பகவான் அருள் பாலித்துக் கொண்டிருக்கிறார். அப்படிப்பட்ட அந்த வராக கஷேத்திரத்திலே இதோ திருக்கல்யாண மகோத்சவம் கோவில் உள்ளே இருக்கும் கல்யாண மண்டபத்திலிருந்து நாம் நேரடி ஒளிபரப்பில் செவித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். தினந்தோறும் இவருக்கு நித்திய கல்யாணம்தான். ஆக வைகான சாக விதிமுறைப்படி அந்த கைங்கரியங்கள் அனைத்தையும் கூட பகவத் ராமானுஜரின் மூலம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு நடைபெற்று வருகிறது. இதோ
மாங்கல்ய பூஜை முடிந்து மாங்கல்ய தாரணத்தை செபிக்கலாம். ஓம் நமோ வெங்கடேசாய. லக்ஷ்மீ ரமண கோவிந்தா. ஓம் பிரஜாபதி சோமகும் ராஜா நமஸ்ருஜத தந்த்ரயோ வேத அன்வஸ்ருத்யந்த तान हस्ते कुरुता अथः सीता सावित्री मांगल्यं तन्तुना नेना लोकरक्षक हेतवे कंठे बध्नामि सुभगे साजीव शरदः शतम्. श्रीदेव्यै नमः. मांगल्यधारण मुहूर्त सुमुहूर्त अस्तु. प्रजापति सोमगुं राजा नमसृजत तंत्रयो वेद अन्वसृज्यन्त तान हस्ते कुरुता अथः सीता सावित्री मांगल्यं तन्तुना नेना लोकरक्षक हेतवे कंठे बध्नामि सुभगे रक्षध्वं भुवनत्रयम्. भूदेव्यै नमः. मांगल्यधारण मुहूर्त सुमुहूर्त अस्तु. వెలయుని కళ్యాణ వేదిగా వెలయుని కళ్యాణ వేదిగా మతింది కలికి జౌవన పుయాగము సేనతడు. వెలయుని కళ్యాణ వేదిగా మతింది కలికి జౌవన పుయాగము సేనతడు. వెలయుని కళ్యాణ వేదిగా మతింది కలికి జౌవన పుయాగము సేనతడు. उपासनाग्नौ लाजहोमं होष्ये अदितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसविद प्रसुवा इमान् लाजानामित्यभिघार्या ॐ इमान् लाजानावपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यं च संवननां तदग्निरनुमन्यताम्
यन्नार्युबभ्रूतेऽग्नौ लाजाना वपन्ति दीर्घायुरस्तु मे पतिरेधन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा उदायुषा स्वायुषो दोषधीनागुम्रसेनोत्पद्यन्यस्य सुष्मेनोधस्ताममृतागुम् अनु विश्वाबुधत्वया वयं धाराबुधन्या इव अतिगाहे महिद्विषः ॐ इमान् लाजानावपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यं च संवननां तदग्निरनुमन्यताम् यन्नार्युबभ्रूतेऽग्नौ लाजानावपन्ति दीर्घायुरस्तु मे पतिरेधन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा उदायुषा स्वायुषो दोषधीनागुम्रसेनोत्पद्यन्यस्य सुष्मेनोधस्ताममृतागुम् अनु विश्वाबुधत्वया वयं धाराबुधन्या इव अतिगाहे महिद्विषः ॐ भूस्वाहा ॐ भवस्वाहा ॐ सुभस्वाहा ॐ भूर्भुवस्वस्वाहा अदितेन्ममग्रस्ताः अनुमतेन्ममग्रस्ताः सरस्वतेन्ममग्रस्ताः देवसविदप्रासामीः श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकमहोत्सवाख्यञ्चक्रमणे उपासनाग्नौ सर्वप्रायश्चित्तार्थं मतो देवादहित्मैष्टमहोमं होष्ये अदितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसविदप्रसुवा ॐ अतो देवा अवन्तनो यतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिः स्वाहा इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रिधानदधे पदम् स्यभागं सुरे स्वाहा त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णोकर्माणि पश्यतगतो व्रतानि पस्पशे इन्द्रस्य यज्ञसखा स्वाहा तद्विष्णो परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूर्यः दिवे चक्षुरादरग् स्वाहा तद्विप्रासो विपण्यमो जाग्रवागं सस्समिन्धरे विष्णोर्यत्र मम पदग् स्वाहा ॐ भूस्वाहा ॐ भवस्वाहा ॐ सुभस्वाहा ॐ भूर्भुवस्वस्वाहा अदितेन्वमग्रस्ताः अनुमतेन्वमग्रस्ताः सरस्वतेन्वमग्रस्ताः देवसविदप्रासामीः अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीयपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकस्य श्रीभूनिनासमेत श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकमहोत्सवाख्यञ्चक्रमणे उपासनाग्नौ कर्मसात्पुण्यार्थं उपरिष्टादन्तहोमं होष्ये अदितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसविदप्रसुमा यदस्य कर्मणोऽत्यवेदशं यत्त्वान्योनिभाकरम् अग्निश्च स्पृष्टकृत्वान् सर्वग्स्पृष्टकं सुहदं करोतु स्वाहा अग्नये स्पृष्टकृते दुहदहुदाहुतीनां कामानाकं समर्थयित्रे स्वाहा अग्नये स्वाहा अग्नये नाराय स्वाहा अग्नये नपतये स्वाहा प्रजापतये स्वाहा इन्द्राय स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वाभ्यो देवताभ्य स्वाहा सर्वत्रैवादिष्टं देवतमस्मै स्वाहा अग्नये सृष्टकृते स्वाहा द्वास्तपदे नमो वास्तपदये स्वाहा जन्म आत्मनो मिन्दाभूतग्निस्तत्त्वनदाहार्जातवेदा विजर्षणि स्वाहा पुनरग्निश्चक्षुरधातुरिन्द्रो बृहस्पतिः पुनर्मे अस्मिनाय पञ्चक्षुरादत्तमक्षो स्वाहा इष्टेभ्य स्वाहा वषडनिष्टेभ्य स्वाहा भैषरेन्द्रिज्ञै स्वाहा स्कृत्यै स्वाहा दौराध्यै स्वाहा देवीभ्य स्वाहा तनूभ्य स्वाहा ऋद्ध्यै स्वाहा समृद्ध्यै स्वाहा सर्वसमृद्ध्यै स्वाहा येधोऽस्येधिषेमहि स्वाहा समिधस्य तेजोषि तेजो मयिधेहि स्वाहा यमस्य धीमहि मृत्योर्मे बाहि स्वाहा सूर्यस्य धीमहि चक्षुर्मे बाहि स्वाहा सोमस्य धीमहि चित्तं मे बाहि स्वाहा वायोर्धीमहि प्राणान्मे बाहि स्वाहा ब्रह्मणो धीमहि बुद्धिं मे पाहि स्वाहा सप्तदे अग्ने समित सप्तजिह्वा सप्तर्षिः सप्तधाम प्रियाणि सप्तहोत्रा सप्तधात्वा यजन्त सप्तयो निरामनत्वा कृतेन स्वाहा प्रतधान विद्वान् नष्टभृतेन पूर्णबाहुदिञ्जहो मनसा प्रजापतये स्वाहा अग्निर्भुक्तं वेदर्भुक्तं ज्योर्भुक्तं पृथिवीभुक्तं वोषधि वनस्पतिगन्धर्वाप्सरसश्चैव भुक्तम् अग्निर्जैनं वेदज्जैनं ज्योर्जैनं पृथिवीजैनं वोषधि वनस्पतिगन्धर्वाप्सरसश्चैव जीर्णं समन्दाम्बरिहरहविषा कृतेन समादित्यैरवसभिः सम्मरुद्भिः समिन्द्रेण विश्वेभिर्देवेभिरङ्क्तां दिव्यं नभो गच्छतु यत् स्वाहा आद्यशेषम् इन्द्राय जुहोमि स्वाहा अग्निस्तृप्यदो वेदस्तृप्यदो द्यौस्तृप्यदो पृथिवीस्तृप्यदो ब्रह्माद्यास्तृप्यन्तां वोषधि वनस्पतिगन्धर्वाप्सरसश्चैव तृप्यन्तां मे दक्षिणदपितरपितामहा प्रपितामहाश्चाक्षं यमस्तृप्यन्ताम् अदितेन्वमग्रस्ताः अनुमतेन्वमग्रस्ताः सरस्वतेन्वमग्रस्ताः देवसविदप्रासामीः आवाहन देवताभ्यो नमः यदा सकं यदा स्थानं प्रवेशयामि पवित्रमसि पवित्रं मे भूयात् स्वाहा पूर्णमसि पूर्णं मे भूयात् स्वाहा सदसि सन्मे भूयात् स्वाहा सर्वमसि स्वाहा अक्षतमक्षत्ये जुहोमि अक्षितमसि मामे क्ष्येष्ठाः वरशिष्ठाकक्वरेष्ठोऽग्रं वचो
अपापधीं त्वेषं वचो अपापधीक स्वाहा ऊर्ध्वं यज्ञं नगिदम्माजीक्वर्धमत्र न मेधामश्वन् पृथिव्या दिवो वा विष्णवत वा पृथिव्या स्वाहा पश्चिमतः परिधिमपनया दक्षिणतः परिधिमपनया उत्तरतः परिधिमपनया पश्चिमतो विष्णोः सदनमसि दक्षिणतो विष्णोः सदनमसि उत्तरतो विष्णोः सदनमसि प्राप्यां विष्णोः सदनमसि सर्वानन्यान् परसमुख्या ग्रन्थीन् विस्तृत्य अर्भिप्रोक्ष्य आप्यायन्तामिति जुहोति आप्यायन्तामापवोषधयो मरुतां पुरुषातायस्थादिवं गच्छतो नो वृष्टिमेतय स्वाहा शुद्ध्यन्तान् देवसदनकं शुद्ध्यन्तान् देवसदनम् भूतिस्मादेर्लभते नित्यकं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निमार्दयो भूतिः आदित्यः सोमो नमः त्रयायुषं जमदग्ने कश्यपस्य त्रयायुषं यद्देवानां त्रयायुषं तन्मे अस्तु त्रयायुषाम् त्रयायुषं जमदग्ने कश्यपस्य त्रयायुषाम् दीर्घायुत्वाय बलाय शताय शतञ्च वर्चसे त्रयायुषाम् आपोहिष्टामयो भवस्तानपूर्जे तथादन महेदनाय तस्मारंगमामवो यस्य क्षयाय जन्मधः आपो जनयथा जनः यत्तेऽग्ने तेजस्ते नाहं तेजस्वी भूयासं यत्तेऽग्ने वर्चस्ते नाहं वर्चस्वी भूयासं यत्तेऽग्ने हरस्ते नाहकं हरस्मी भूयासं मय मेधा मय प्रजा मय यज्ञस्तेजो दधात मय मेधा मय प्रजा मयन्द्रयन्द्रयं दधात मय मेधा मय प्रजा मय सूर्यो दधात मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं हुदासनाय कृतमयादेव परिपूर्णं तदस्तुते प्रायश्चित्तान् यशेषानुहमकर्मात्मकानि वेदान् शेषापशेषानां कृष्णान् स्मरणं ब्रह्मकायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः पुनः पादर्घ्याचमनीयं समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः यथा सुखं यथा स्थानं प्रवेशयामि अग्निपुरुषाय नमः पुनः पादर्घ्याचमनीयं समर्पयामि अग्निपुरुषाय नमः आच्योपहारं निवेदयामि गुणोपहारं निवेदयामि अग्निपुरुषाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि भगवत्समारोपणं सर्वं श्री श्रीनिवासार्पणमस्तु यज्ञेश्वराय नमः यदा सुखं यदा स्थानं प्रवेशयामि शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च ஓம் ஸ்ரீ மகாலட்சுமி நமஹ. கல்யாண உற்சவத்திலே லாஜ ஹோமம் பிரதான் ஹோமம் ஆகியவற்றை சேவித்தோம். அடுத்ததாக இப்பொழுது நாம் காண இருப்பது வாரணமாயிரம். ஆண்டாள் தன்னுடைய அந்த ஸ்ரீ ரங்கநாதரை திருமணம் செய்து கொள்வதற்காக வடபத்திர சாயை செய்து கொள்வதற்காக கனவு கண்டு அதிலே அந்த பகவான் தன்னை அழைத்து சென்றதாக அக்னி சாட்சியாய் திருமணம் செய்து கொண்டு அருந்ததியை காட்டி அந்த தேவியை அழைத்து சென்றதாக கூறப்படுகிறது. அப்படி தன்னுடைய கனவின் விற்த்தாந்தங்களை கூறினாள். அதை அந்த பாசுரங்களை பாடிக்கொண்டே தேங்காய்களை உருட்டினார்கள். இப்பொழுது மாலா பரிவர்த்தனம், மாலைகளை மாற்றும் பரிவர்த்தனம். புஷ்பங்களை கொய்து வந்து மாலைகளாக தொடுத்து ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரிலே இருக்கும் வட்டபத்திர சாய்க்கு தினந்தோறும் அணிவிப்பாள் அந்த ஆண்டாள். அந்த மாலைகளைப் போல இங்கே தொடுத்து பகவானுக்கு சமர்ப்பித்தார்கள். அதே மாலையை இதோ ஸ்ரீதேவி பிராட்டிக்கு அணிவிக்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. லக்ஷ்மி ரமண கோவிந்தா கோவிந்தா என்று ஸ்ரீதேவி பிராட்டியின் கழுத்திலே உள்ள மாலையானது திரும்பவும் வேங்கடவனுக்கு அணிவிக்கப்படும் பொழுது அந்த பக்தர்கள் கூறுவார்களாம், எங்கள் சுவாமிதான், எங்கள் வேங்கடநாதன்தான் சிறந்தவன் என்று.
அப்படி அந்த வேங்கடநாதனுக்கு அணிவித்த மாலையானது திரும்பவும் பூமி பிராட்டிக்கு கொண்டு சென்று அணிவிக்கப்படுகிறது. பூமி பிராட்டி அந்த மாலையை அணிந்து கொள்ளுகிறாள். தராரமண கோவிந்தா கோவிந்தா என்று. அந்த பூமி பிராட்டி ஏற்கனவே தொடுத்து அணிவித்தவள். அதனால் அந்த மாலையை திரும்பவும் பகவானுக்கே சமர்ப்பிக்கும்படி அனுப்புகிறாள். பகவானிடம் சென்று அந்த மாலையை அணிவிக்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. ஸ்ரீ வெங்கடேசா ஸ்ரீ சீனிவாசா கோவிந்தா கோவிந்தா என்று. பகவானுக்கு அந்த மாலை சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பின் ஸ்ரீதேவி பூதேவி பிராட்டிமார்களை அந்த பகவானுடைய பக்கத்தில் ஆசீனப்படுத்துகிறார்கள். பக்தர்கள் கோவிந்த நாமத்தை கூறிக்கொண்டு மகிழ்ச்சியுடன் கரதாளம் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். பகவானே வேங்கடவனே கோவிந்தா என்று அந்த கோவிந்த நாமம் நமக்கும் கேட்கிறது, அந்த முழக்கமானது. அதைத் தொடர்ந்து தலையிலே பரிவட்டம் கட்டிக்கொண்டு மூவரின் சிரசின் மீதும் தலம்பிராலு என்கின்ற அக்ஷதாரோபண கைங்கரியத்தையும் அதைத் தொடர்ந்து மங்கள நீராஜனத்தையும் சமர்ப்பிக்கிறார். இத்துடன் கல்யாண உற்சவம் நிறைவு பெறுகிறது. ஓம் நமோ வெங்கடேசாய. கோவிந்தா கோவிந்தா. அக்ஷதாரோபண கைங்கரியத்தை செய்து கொண்டிருக்கிறார். லக்ஷ்மி ரமண கோவிந்தா, தரா ரமண கோவிந்தா. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు, పేరంటాండ్ల నడిమి పెండ్లి కూతురు, విభు పేరు పుచ్చ సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు.
ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ